السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے جشنو دیو ورما کو چیف منسٹر تلنگانہ اے ریونت ریڈی کی موجودگی میں راج بھون میں تلنگانہ کے نئے گورنر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد مبارکباد پیش کی۔ باپو جی بچنالیہ کے صدر بھکتو سلام نے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کو نظام آباد قصبے میں بابو جی بچنالیہ کی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے 25 لاکھ روپے کے سرکاری فنڈ جاری کرنے پر کرمچمان سے نوازا۔ جشنو دیو ورما نے راج بھون حیدرآباد میں ریاست تلنگانہ کے چوتھے گورنر کے طور پر حلف لیا ہے۔ انہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ برائے ریاست تلنگانہ شری آلوک رادے نے اپنے عہدے کا حلف دلایا ہے اور چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، کابینہ کے وزراء اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے جنہوں نے اس حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی، انہوں نے گورنر جشنو دیو ورما کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور مبارکباد پیش کی۔ میر چوک پولیس نے ایک بین ریاستی جائیداد کے مجرم کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے ایک سونی کیمرہ، ماسٹر لینس، 2 میموری کارڈز، 2 کارڈ ریڈر، 1 بیٹریاں، 3 اور چارجرز 2 برآمد کیے ہیں۔ تمام کی کل مالیت 9 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے وی نریندر ریڈی، مشیر حکومت تلنگانہ این راجندر ریڈی، ایم ایل اے ہنمکنڈا، راج ٹھاکر، ایم ایل اے رامگنڈم، اے لکشمن کمار، ایم ایل اے دھرما پوری اور مرلی نائک، ایم ایل اے محبوب آباد کے ہمراہ ریونت ریڈی چیف منسٹر تلنگانہ سے اسمبلی میں ملاقات کی اور ان سے بھرپور نمائندگی کی کہ 2024 میں تلنگانہ کے عازمین حج کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا 2025 میں اس کا اعادہ نہ ہو۔ مولانا خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک تفصیلی یادداشت میں 2024 میں مقدس سفر حج میں عازمین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی تفصیلات کا احاطہ کیا۔ سابق وزیر و BRS پارٹی ضلع عادل آباد صدر جوگو رامنا نے کہا ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے پاس خواتین کا کوئی احترام نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی اجلاس میں BRS کے خاتون ارکان اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی اور سنیتا لکشما ریڈی کے خلاف چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے اہانت آمیز تبصروں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اہانت آمیز تبصروں کے خلاف کارگزار صدر BRS کے تارک راما کی ہدایت پر جمعرات کے روز عادل آباد ضلع مستقل میں سابق وزیر و BRS پارٹی ضلع عادل آباد صدر جوگو رامنا کی قیادت میں BRS پارٹی دفتر سے ایک ریلی نکالی گئی اور کمرم بھیم چوک پر پلے کارڈ اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی کے خلاف نعرے لگائے گئے اور چیف منسٹر سے اپنے تبصروں کو فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بے షరతుగా యావత్తు మహిళా లోకానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి మేము ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ కుమరం భీం చౌరస్తా నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఆదిలాబాద్ BRS పార్టీ ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే, క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి అందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నాం। నిజంగా ఒక తల్లికి కొడుకునే, నిజంగా ఒక తల్లి ఎంత బాధపడుతుందో తెలుసు। కన్న బిడ్డ అవమానం జరిగినా అవహేళన జరిగినా ఒక తల్లి ఎంత బాధపడుతుందో నీకు తెలుసు। మరి అటువంటి తల్లికి పుట్టిన మన బిడ్డలం కాబట్టి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు దేశాలలో పోకుండా బేషరతుగా ఈరోజు తెలంగాణ మహిళా లోకానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ జిల్లా BRS శాఖ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది। రేవంత్ రెడ్డి సీఎం نظام آباد محلہ پھلانگ کی مشہور و معروف شخصیت محمد مسیح الدین محکمہ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ نظام آباد اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے پر ہیلپ ویلفیئر سوسائٹی پھلانگ کی جانب سے شہر کے MR گارڈن فنکشن ہال آٹو نگر میں تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں محلہ پھلانگ و شہر نظام آباد کی دیگر اہم و معروف شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس تہنیتی تقریب کے موقع پر ہیلپ ویلفیئر سوسائٹی پھلانگ نائب صدر ندیم احمد کی جانب سے باحسن خوبی اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے پر محمد مسیح الدین کی شالپوشی و گلپوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی۔ سریکاکولم کے قانون ساز گنڈو شنکر نے کہا ہے کہ طلبہ کو ایک مقصد طے کرنا چاہیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تعلیم پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سریکاکولم MLA گنڈو شنکر گورنمنٹ مینس جونیئر کالج کے زیر اہتمام کتاب تقسیم پروگرام میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر MLA گنڈو شنکر نے کہا کہ طلبہ کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے اور اونچی چوٹیوں اور بلندیوں کو چھونا چاہیے۔
और कहा है कि समाज की तरक्की तालीम से ही मुमकिन है। गुरुमिटकल में नई तामीर पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल, देवर राजा आरसू बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल की नई तामीर का इफ्तिताह एमएलए श्रनुगुड़ा कंदकू ने किया। इस मौके पर तहसीलदार नीला प्रभा, चीफ ऑफिसर भारती, नायब तहसीलदार एजाजुल हक, श्रनु, अवंती, पापना, मन्ने, हॉस्टल के स्टूडेंट्स मौजूद थे। तमाम लोग हॉस्टल के बच्चे और लोग दीगर इस दौरान मौजूद रहे। हाईटेक टीवी की जानिब से फाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 15 ದಿನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿರಲಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ AW ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಸತಿ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಊಟ ಮೆನ್ಯೂ ಇರ್ತದ ಆ ಮೆನ್ಯೂನ ನನಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಸಲ ವಿಶೇಷ। भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से शहर के मसरूफ तरीन शाहराहों पर अवाम को ट्रैफिक मसाइल की महफूज रखने के लिए भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस के अलावा पुलिस जवानों के हमरा बारिश के दौरान पैदल गश्त करते हुए गाड़ियों की पार्किंग को सही अंदाज में तरतीब देने के लिए अवाम को नसीहत की। जिले के वाड़ागिरी तालुका के यादगिरी हलके के तहत आने वाले देहात स्वतंत्रिया ने अब तक कोई तरक्की नहीं की है और आलूदा पानी में जहरीले कीड़े मकोड़ों से अवाम में खौफ की फिजा पैदा हो गई है। स्कूल के बच्चों का आवारा फिरना, देहात की मरकजी सड़क के साथ साथ सीवरेज का पानी सड़क पर बह रहा। कुली समाज के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमेश ने कहा है कि ऐसी सूरत हाल है कि लोग नाक ढांप कर घूम रहे हैं। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಡೆಂಗು, ಕಾಲರದಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ಯದ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಜನ ಜಾನುವಾರು ತತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಯದ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಹಾಕಿಸಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರೋದನ್ನು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಂಗುನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಲರದಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡ್ಬೋದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CO, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಇವೆರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಲಿಗೇರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ವಡಗೇರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಿಗೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಚ್ಚಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जंगलात इलाके में एक गैर किस्म के अस्करी पसंदों के ठिकाने का पर्दाफाश करने के बाद हथियारों और धमाका खेज मवाद की एक खेप को जब्त किया। हुकाम ने उन्होंने बताया कि कालाकोट के धर्मशाल इलाके में गुलाबगढ़ में पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, BSF और CRPF एहलकारों की जारी मुश्तरका मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता चला। DHPS स्टेट चीफ सेक्रेटरी मारूपाका अनिल कुमार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 7 अरकान के फैसले का खैर मकदम करते हैं, जिसने ऑल दलित हुकूक जद्दोजहद समिति DHPS के रियासती सदर मारूपाका अनिल कुमार के शुक्रगुजार हैं और कहा कि हमारी रियासत तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी, जिन्होंने असेंबली के गवाह के तौर पर कहा है कि वो मादिगा जलीजातों के साथ इंसाफ करेंगे, चाहे वो पहले दिए गए नोटिफिकेशन को वापस ले लें। शहर निजामाबाद की कदीम तरीन लेआउट कॉलोनी, जिसका क़याम 1992 में अमल में लाया गया था, गुज़िश्ता कई सालों से अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी से बुनियादी सहूलतों के फक़दान से इस कॉलोनी में मुक़ीम मकीनों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस कॉलोनी की अवाम व टेलीफोन रेसिडेंशियल सोसाइटी की जानिब से 2 दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुनियादी मसाइल की यकसोई के लिए अपना एहतजाज दर्ज करने के सिलसिले में एक वीडियो पैगाम वायरल किया गया था
और ये वीडियो मोहम्मद अली शब्बीर रियासती मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए दर्ज फहरिस्त व अक़लियती तबक़ात के दफ्तर मौसूल होने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने इसका सख्त नोट लेते हुए कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सीनियर अक़लियती जिनमें काबिल ज़िक्र सैयद नजीब अली, एडवोकेट मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद हारून खान, मोहम्मद समीर डिवीजन इंचार्ज जर्दीस, मोहम्मद समीर अहमद जोनल सदर और दीगर ने निजामाबाद को हिदायत जारी की वो फौरी तौर पर टेलीफोन कॉलोनी पहुंचकर इसका दौरा किए और उन्हें यहाँ के दरीना बल्दी, आबरसानी सड़कें, ड्रेनेज, बिजली बशमुल साफ सफाई के मसाइल से कॉलोनी के साकिनान से बिला मुशाफा मुलाकात किए। इस तनाजुर में कांग्रेस पार्टी के एक नुमाइंदे वफ्द ने सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़ियादत में सुबह टेलीफोन कॉलोनी रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारों जिनमें मोहम्मद साबिर, बाबर, नबी खान, शफी व मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए टेलीफोन कॉलोनी देरीना हल तलब मसाइल पर तफसीली तौर पर बातचीत की। टेलीफोन कॉलोनी जो निजामाबाद की सबसे कदीम लेआउट कॉलोनी है, 1992 में बनी हुई कॉलोनी है, वहाँ पर मुख्तलिफ बल्दियाती मसाइल का सामना इस वक्त वहाँ के मुकामी मकीन कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले वहाँ के पूरे वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने एक वीडियो जारी करते हुए अपना एक एहतजाज दर्ज कराया था और ये वीडियो शब्बीर साहब के पास पहुँची थी। तो शब्बीर साहब ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए हमको इस बात की हिदायत दी कि मुकामी पूरे वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हम हासिल करें और इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से और जो ज़िम्मेदारान इंडस्ट्रीज़ के हैं उन सब से नुमाइंदगी करें। चुनाचे कल शब्बीर साहब के कहने पर मैं, हारून खान साहब, कॉरपोरेटर बबलू खान साहब, अशफाक अहमद खान साहब और सुमेर अहमद साहब कल वहाँ के दफ्तर में साबिर भाई, बाबर साहब और नबी खान साहब और जो जिम्मेदारान हैं, समी साहब भी हमारे डिवीज़न के इंचार्ज समी साहब, शफी साहब, हम मिलकर कल वहाँ पर पहुँचे और उनसे हमने पूरी तफसील से वहाँ पर जो मसाइल वो लोग झेल रहे हैं उनकी तफसीलात हमने हासिल की और वहीं से बैठकर हमने कमिश्नर बल्दिया से रब्त पैदा किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो फौरी तौर पर उस मकाम का दौरा करें और वहाँ के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए जो इमरजेंसी काम वहाँ पर इस वक्त ज़रूरी अंजाम देने चाहिए उसको फौरी तौर पर अंजाम दिया जाए। चुनाचे कमिश्नर बल्दिया ने आज सुबह एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रवाना किया क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, इस वजह से वो हाजिर नहीं हो सके और डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को इस बात की उन्होंने हिदायत दी कि वहाँ पर जो मसाइल है वो मसाइल का पूरा जायजा लेकर उन्हें रिपोर्ट पेश करें। आज हमको भी उन्होंने यहाँ पर मदऊ किया ताकि हम इस सिलसिले में बातचीत करें। आज इंडस्ट्रीज के भी जिम्मेदारों को यहाँ पर उन्होंने तलब किया और इंडस्ट्रीज का और कॉरपोरेशन के जरिए से जो वहाँ के मसाइल है, सड़कों का मसाइल है, इस वक्त सड़कों पर चलना इंतहाई दुश्वार है, वहाँ पर कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, सफाई का इंतहाई नाकिस इंतजाम है, वहाँ पर ओपन प्लाट्स के अंदर इस वक्त गंदगी है, गंदा पानी जमा है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों के हिफ्ज़ान सेहत पर असरात मुरतब हो रहे हैं। तो ये सब संगीन मसाइल को उनके इल्म में लाया गया और इस सिलसिले में वेलफेयर सोसाइटी टेलीफोन कॉलोनी रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से साबिर साहब ने और समी साहब जो पूरी तरह से वहाँ पर उनके तमाम जिम्मेदारों के साथ गुज़िश्ता कई दिनों से उनके मसाइल के सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन नुमाइंदगी करते रहे हैं, वो हम सब मिलकर आज यहाँ पर पहुँचे और उनसे पूरी तरह से बैठकर बड़ी तफसील से उनके साथ गुफ्तगू हमने की और कमिश्नर साहब ने तयक़ुन दिया कि अंदरून 2 यूम इमीडिएट फौरी असर के साथ वो काम शुरू करेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी और इंडस्ट्रीज़ के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आज ही के फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर जेसीबी, ट्रैक्टर और बल्दी अमले के साथ फौरी वहाँ पर कामों का आगाज़ करते हुए वहाँ पर इस वक्त जो सड़कों पर कचरा है, जो सड़कें नाहमवार हो गई हैं, उनको हमवार करने का काम करे, वहाँ पर कचरे की निकासी का काम करे। डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि 2 यौम के अंदर वहाँ पर जो कचरे का मामला है, जहाँ पर गंदगी और सफाई का मसला है, वो एडिशनल वहाँ पर पूरे एम्प्लॉइज़ को, सैनिटेशन के अमले को, 50 से ज़ायद अमले को वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे और अंदरून 2 यौम पूरा वहाँ पर पूरे इलाके की सफाई की जाएगी। कमिश्नर ने हमको ये भी तयक़ुन दिया कि वहाँ पर जो सड़कों की तामीर का इस वक्त मसला है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी कि वो वहाँ पर जो एस्टिमेशन बनाए
एई के जरिए, ई के जरिए से, और उसको तरजीही बुनियादों पर उन्होंने कहा कि अंदरून 10 यौम तरजीही बुनियादों पर तमाम ही रोड्स की जहां पर वो पैच वर्क का काम है वो पैच वर्क किया जाएगा। अगर इजाफी फंड हो तो वो इजाफी फंड के सिलसिले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट ऑफिस मखदूम भवन के साबिक खजांची और ऑफिस सेक्रेटरी जो हाल ही में बीमार पड़ने के बाद चंद्र राजेश्वर राव फाउंडेशन के ज़रिए इंतजाम एक ओल्ड एज होम में ज़र इलाज हैं। डीएस रामचंद्र राव से चंद्र राजेश्वर राव फाउंडेशन के एजाजी मुशीर सोरावरम सुधाकर रेड्डी, साबिक एमपी सीपीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी और उनकी अहलिया विजय लक्ष्मी एआईटीयूसी के साबिक कौमी सेक्रेटरी ने मुलाकात की। ऑल इंडिया किसान सभा के नायब सदर सरमपल्ली मल्लारेड्डी तेलंगाना जरिए मजदूर यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी और वेंकट रामलू ने कहा है कि कच्चम कृष्णा मूर्ति को हकीकी खराज अकीदत उस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखना है जब तक हुकूमत की जायद अराजी बेजमीन गरीबों में तकसीम नहीं कर दी जाती। जवाहर नगर स्टेट ऑफिस में रियासती नायब सदर रवि प्रसाद की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर माजी के हुक्मरानों ने कम्युनिस्टों की जद्दोजहद के नतीजे में अराजी इस्लाहात के क़वानीन को लागू किया तो आज जिन अवामी नुमाइंदों ने अवाम के वोटों से कामयाबी हासिल की है उन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बीसी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वकुला अभानम कृष्णा मोहन राव ने अरकान के किशोर गौड़ और शोभा प्रद पटेल नोली के साथ तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC ST BC और अक़लियती मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में BC रिजर्वेशन और रियासत तेलंगाना में ज़ात के सर्वे की तैयारियों जैसे मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादिला ख्याल किया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स DIG MD शादान ज़ेब खान ने आदिलाबाद का दौरा करते हुए रेलवे स्टेशन और RPF स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने स्टेशन के रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की और स्टेशन और अमले के काम का जायजा लिया और अमले को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल किया। क़ब्ल आदिलाबाद जिले SP आदिलाबाद गौस आलम ने DIG से खैरसुगाली मुलाकात की और सरसब्ज पौधा पेश करते हुए उनका खैर मक़दम किया। बादजा उन्होंने जिले SP आदिलाबाद के हमरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के दफ्तर के अहाते में पौधा लगाया। एक पेड़ पौधा, एक पौधा एक्चुअली सब जगह नहीं था, दूर करे थे, वो अच्छी बात है। मैं जिस बटालियन में था वो 217 एकड़ लैंड। अच्छा, तो वहाँ पे जगाधरी में यमुनानगर वहाँ के DGP थे दलाल साहब आए तो इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।